This video covers almost everything that you need for your CLAT preparations. अब मुझे इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे क्लैट प्रिपरेशन के लिए, इतने सारे DMs, कमेंट्स, क्वेश्चंस. I thought this is the right time to make a video on this, and एक से भले दो, तो I got another person on the channel and we've tried to put maximum possible into the video. Make sure you stay till the end so that you don't miss anything because intricacies discuss की है. और let's get on to the video without any delay. But before that, make sure that you subscribe to the channel for more such videos. Today we have with us a special guest. She's Bhumika from Being Bhumika. She's a YouTuber herself. She's currently pursuing her first year from National Law University of Odisha. And this video is going to be super valuable, super helpful to you, and I can assure that for sure. But before that, let's welcome Bhumika. Hi Bhumika, thank you so much for being here. Hello Ananta, thank you for welcoming me to your channel. I am Bhumika, and as Ananta has already told you, I have my own YouTube channel Being Bhumika, and I'm currently studying at NLEO Odisha. I have noticed that Bhumika makes really, varied content, and I just love her vlogs. The last vlog that I saw was the Harry Potter quiz committee vlog, and you must check her out. She's doing awesome. I know being in National Law University become a bit hectic, or do you feel it is manageable? What do you think so? Now currently, I guess like in first semester, especially with online semester, we haven't had that like impact of being in a national law university, and we haven't like had that huge of impact. I think it can be hectic at times, especially like during the project submission and viva and like end semester. It's so hectic. I bet it's hectic in all like law colleges. That is there in every college, but like I think I will be able to experience more of it if I go offline like on the campus, and that would be great. Let's hope that it gets open soon. Yeah, let's hope. Like this year we want to go to college no matter what. Okay, so without any delay, let's first start with talking about like tackling the giants of the examinations. When we talk about maths, the reading speed, comprehending problems, and GK, these things are main giants in the examination, and this, I believe, students do face a lot of problem with these three sections and these three things. And if we talk about reading speed and comprehending, they are like वो पूरा का पूरा पेपर में मतलब वही होता है. हाँ. तो that is like the main thing which is needed. So what do you think would be separate strategy for each section or each thing? So let's first talk about reading speed and comprehending, because that's most asked question. So reading speed and comprehension it goes hand in hand, because sometimes when you're reading so fast you cannot like comprehend what is being written and what has been written in that paragraph or something like that. So for me, I think it actually helps if you read daily, and if you do not have a habit of reading, like many people do not have a habit of reading, you should start by reading editorials at least in newspapers, and try to like read the smaller editorials which are at the side of the Hindu newspaper. You can like start reading from there. And once you start reading, you should try to read it not word by word. You should read it like the whole sentence as a whole. You should try to grasp the concept of the sentence as a whole. So what you should do is, firstly, you should like sometimes you should not focus that much on comprehending it as much as reading it fastly. And when you do that, eventually you will get the hang of it. You will start like grasping some ideas. So you can try that. Along with that, I would really recommend for reading speed, for CLAT, I would recommend you to solve like 5 passages and try to solve those 5 passages in 20 minutes. This is like the biggest thing and biggest practice which you can do. So try to do that daily. Solve 5 passages in 20 minutes daily. That will really help. So 5 passages each day, guys. Note it down. 5 passages, when you mean like per subject for English and for others? For English. I think for English specifically, because like if you get... if you practice from English, you'll get a good reading speed, and then you can like apply that in other subjects as well. So that helps. Right. So one thing that you mentioned was newspapers. So can we consider newspaper as no miss? Not at all. You can't afford to miss it? Yeah. You cannot afford to miss it. For newspaper, I would recommend, even though if you have not been consistent in the past with newspapers, start by being consistent now. Newspaper will not only help you in English, it will help you in your legal reasoning. It will help you in your general knowledge. So newspapers are like the Bible for CLAT, I'd say. Right.
start reading at least, like try to read editorials at least, and then you get an idea of about what is going on in the world, and then you can like research more on those topics, and it will help you prepare for English as well as your general affairs. Okay, let's move Yeah. to quantitative techniques. So this section is seen as the villain of the paper because मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद था, लेकिन just because करना था. Same. तो I couldn't तुम्हारे handle रहे that. हैं कि ऐसे कुछ quantitative? My quantitative techniques is not that good, I guess. Like I am a humanities student myself, so I took humanities because I did not want to take maths, and I really like subjects related to humanities. But quantitative techniques is kind of a tricky subject if you are not that used to solving maths equations, but you can try to at least like give 30 minutes per day to quantitative techniques, try to solve graphs, and try to solve these different data graphs and pie charts and all these things. And when you try to practice them daily, it will help you. Personally for me, even though I had practiced so much, it can get a bit tricky on the exam day. So if you're not that good at quantitative techniques, you should try to focus on some other subjects, but keep practicing quantitative techniques as well. So for me personally, even in my final CAT exam, I only got like 4 marks out of 15 in quantitative techniques. So I'm not the best person to take advice from, but you should try practicing some graphs and pie charts, and you should know the basic things like ratio, proportions, and percentages. And these are the basic things which you should know. So try to practice those, work and time, and all these stuff. So when you're practicing graphs and you're practicing some basic maths topics, then you will get a hang of it, and you will be able to score at least like 10 to 15 marks in quantitative techniques if you are good at solving them quickly. Also, you know, one thing that I've noticed is people try to just avoid this whole section, which I feel is a major blunder they commit, because you know, at the end of the day, you never know which kind of question actually works for you. So this is what I experienced when I gave CLAT. मुझे नहीं पता था कि यार कहाँ से मेरे नंबर आ जाएं, बिकॉज मैं पूरे साल भी अगर मेरे मैथ्स में नंबर अच्छे नहीं रहे हैं, देयर इज़ अ बिग चांस कि लास्ट में वो क्वेश्चन मुझे आ जाए. सो यू नो, डोंट मिस एनीथिंग. मतलब उसको डेलिबरेटली छोड़ो मत. छूट जाए तो डोंट पैनिक अबाउट इट. दिस इज व्हाट आई फील. Yeah, I agree with you. Like never miss quantitative techniques. एक बार section को you should go and see that at least. कि at least if you know it, try to do it if you have time, and if you know it, try to do it, surely do it. Because like if I had not given quantitative techniques that day, मेरे 4 marks चले जाते हैं, and like फिर ranks पूरी ऊपर नीचे हो जाती हैं. तो every mark matter, and you should focus on every section, and like don't leave any section if you know the question and if you have the time for that. Right. जनरल नॉलेज एंड द जीके सेक्शन, दैट इज, बहुत ज़्यादा डर होता है लोगों के अंदर. और डर मतलब भयावह डर, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार मैंने अभी पिछले 6 महीने के तो करंट अफेयर्स करे नहीं है, कहाँ से चालू करना है वो मुझे पता नहीं है, कब तक के करने हैं वो मुझे पता नहीं है. तो इवन ये जब मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, इतने सारे क्वेश्चंस थे, एंड विच इज़ लाइक इवन वी हैव फेस्ड द सेम प्रॉब्लम कि यार कहाँ से करना है, कब तक के करना है. एक दिन अगले दिन के नहीं करे और आ गए पेपर में, तो दैट्स गोना बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन. सो what would you suggest as a strategy for GK? And let's also consider कि 1 साल अगर नहीं है किसी के पास, है ना, तो आज से जो ये वीडियो देख रहा है, तो आज से वो क्या कर सकता है? What do you think? First of all, I would like to say कि मैंने भी करंट अफेयर्स पूरे लास्ट ईयर का नहीं पढ़ा था इतने अच्छे से. What I did, मैंने 4 महीने पहले से ही I had started seriously preparing for CLAT. And during those 4 months, what I did was that करंट अफेयर्स के लिए यू शुड रीड एडिटोरियल्स. और मतलब यूट्यूब पे भी देर आर मेनी वीडियोज विच टेल यू विच आर द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स in that day's newspaper. So just highlight those articles, read them on your own, read those editorials on your own. Whatever topics you feel are recurring, or whatever topics you feel like need more researching, you should go and search them on Google. Put the topic's name, write Drishti IAS. Drishti IAS is a great website. What you will find there will be the connections to different topics. So अगर if a topic is coming बार न्यूज़पेपर में, उसको दृष्टि IAS पे डालो, वहाँ पे तुमको उस टॉपिक से रिलेटेड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगा. एंड व्हेन यू फाइंड डिफरेंट इन्फॉर्मेशन related to that topic, those information will be the questions which will be coming in your CLAT examination, because what they do is they take a single topic and they ask like 5 to 6 questions based on that topic. So that will really help you find those connections. So you can do that.
एंड इससे तुम्हारे पास्ट जो मंथ्स के छूटे भी होंगे ना करंट अफेयर्स, वो भी कवर हो जाएंगे. बिकॉज लाइक इफ यू आर गोइंग टू इंटरनेट सर्चिंग फॉर इट, देन उससे जो पास्ट इन्फॉर्मेशन होगी उस टॉपिक से रिलेटेड वो मिल जाएगी. एंड यू वोंट हैव टू वरी अ लॉट अबाउट दैट, क्योंकि इवन द क्वेश्चन पेपर सेटर्स दे डू नॉट गो दैट बैक इनटू इट. वो भी करंट अफेयर्स के रिलेटेड ही देते हैं. सो यू डू नॉट नीड टू वरी अ लॉट अबाउट दैट. अलॉन्ग विद दैट, वन थिंग विच आई वुड हाईली रिकमेंड कि मॉक टेस्ट दिया करो. एंड लाइक मॉक टेस्ट में जो करंट अफेयर्स में सेक्शंस में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, you should pay attention to the topics of those questions. एंड उन टॉपिक्स को यू हैव टू गो नेट पे जाकर. इफ यू डोंट नो दैट टॉपिक फ्रॉम करंट अफेयर्स, गो टू द इंटरनेट एंड सर्च दैट टॉपिक, रीड 2 to 3 editorials on that topic, and then you will be prepared for your current affairs. You do not need to worry a lot about that. Prepare from your mock tests and search those topics on your own, read editorials on your own, and go through the HTIS, find connections to that topic and like read them. And I think that would be it. You do not need to worry a lot about the things you have left. If you are doing this much, you will get the information which you have left from the past, which would be important. So you will eventually cover a whole lot of that. And like if you are in a coaching or something, you can just focus. And if I would also not recommend you going through the compendiums of the months you have left. I seriously would not recommend that. Better than that, you should start practicing your mocks. बाकी इतना टाइम अगर आप compendium में लगाओगे, if you're reading that, it is not going to make sense to you. याद भी नहीं रहता है आधा. So focus on editorials and focus on the mock test में जो questions आ रहे हैं उन topics पे. Right. Also, you mentioned about Drishti IAS. So one needs to remember while preparing for CLAT that अब खेल ब्रॉड जाने का नहीं है, अब डीप जाने का गेम है. तो रिमेंबर कि आप एक चीज़ को पढ़ रहे हो, एक टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो उसकी डेप्थ में ज़रूर जाओ. ऊपर से पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होगा. राइट. सो हाँ, ऑल्सो वन थिंग दैट एस्पिरेंट्स फेस प्रॉब्लम इज़ द सोर्स ऑफ स्टडिंग GK. तो वो सोर्सेज, what did you prefer? कौन से sources? Okay, so I prefer mostly newspaper. First is like newspaper is the must. Newspaper के जो editorials हैं, focus on them. Along with that, Drishti IAS के जो important topics आपको मिलते हैं, focus on that, and that would be enough. Topics अगर आप बहुत ज़्यादा sources से information लेते हो, it will just information pile up होता जाएगा. You won't be able to understand anything. Try to get to 2 to 3 सोर्सेस लो, उनसे पढ़ो अच्छे से, उन पे फोकस करो. न्यूज़पेपर एनालिसिस वॉच करो यूट्यूब पे जो डेली डालते हैं लोग. रीड द न्यूज़पेपर्स ऑन योर ओन. इफ यू विल रीड इट ऑन योर ओन, रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, साथ साथ आपका करंट अफेयर्स यू विल बी एबल टू प्रिपेयर दैट, एंड यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग आई गेस एज अ होल. एंड दृष्टि IAS. सो दीज 3 वर द मेन सोर्सेज विच आई रिफर टू. एंड at the end of the day, CLAT में क्या आना है, you do not know that, so don't panic a lot about that. Just prepare the main things and try to cover as much as you can. Right. Okay, Bhumika, what do you think are like, according to you, a no miss thing? Like it is a tip to go to. मतलब ये चीज़ छूट नहीं सकती, कुछ करो ना करो. So what is that one thing you want कि ये तो करना ही है पूरी CLAT preparation के टाइम पे? I think there are 2 things. First is practice. Practice daily karo. Please practice daily. Do not miss a day. You can miss a day if you're like functions वगैरह, you can miss a day or 2, but like do not miss a day. Practice karo daily. Try doing reading comprehension daily. If you're weak in maths, if you're trying to improve in that, try doing some maths questions daily, and it will help you a lot. Practicing will help you a lot, and there are many of my friends who started preparing late, like in NLU itself. So they started preparing late, but still they practiced it and they had a good reading speed. They developed the good reading speed, and uske wajah se they have benefited and they are in NLUs right now. So I would recommend ki practice daily karo. And the second thing is always write down your doubts at a place. जो भी तुम्हें doubt है, write them down in a place and refer back to them. For example, if you're solving a mock and in that mock you have wrong questions, or some questions you did not get right at the first try, take a screenshot of those questions or write them down in a notebook and refer back to it like once a week or once in twice a week, and that will surely help you, because like फिर तुमको पता चलेगा ये मेरी गलती थी, and you will refer back to it, and then you won't make that mistake in the final exam. So that is, these are the 2 tips which you need to follow to clear CLAT. Also, I just जैसे बोला कि एक दिन का ब्रेक ले लो, and breaks are important. So let's also talk about the pressure and the anxiety that students carry through the paper की preparation. So what do you think कि
क्योंकि डिस्पाइट वी रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स कि नहीं लेना है, प्रेशर एंजाइटी नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेना है, was there a time in your preparation, I do not know, I can't say that, कि मेरे में नहीं था, मुझ में था. I had a bit of anxiety about whether I'll be able to perform or not. Did you feel the same, and what was your way of dealing with that? Okay, so I am a firm believer in the law of attraction. I believe that our thoughts create a reality and that our vibrations attract what is around us. So what I think is that as long as you're positive about the outcome, and if as long as you do not even think about the outcome, you think that whatever you're doing is correct and you are on the right path, the outcome won't matter as much, because the outcome will come itself. वो outcome खुद से ही आएगा. So what I used to do is whenever I used to feel like कि यार मुझसे होगा कि नहीं होगा, and I used to be like confused and worried about that, I used to study, because like at the end of the day, the only thing that is going to help me is either studying or practicing for CLAT. Wailing about it, crying about it, being very anxious about it won't help. And I know being anxious is a big thing, because I have felt anxiety too during the preparation time, especially like 2-3 दिन पहले CLAT के I could not even revise my current affairs, and वो anxiety एकदम अलग level की थी. But I do believe that as long as you think कि even if you're anxious, the only thing that will help you, and even if you're anxious about the result of your CLAT or anything like that, the only thing that is going to help you at the end of the day is practicing and studying. Because if you are practicing and studying, वो finally जाके आपको ही help करेगा बाद में. So what you should do is you should even try, and breaks लेना बहुत ज़रूरी है. Please do not like force yourself to study like 8 hours straight पढ़ रहे हो. That is not going to work out. That is not going to be productive. That is not going to be helpful. Try to read at least, study at least 6 hours a day maybe. But उससे ज़्यादा you can do it. But like I won't recommend 8 hours से ज़्यादा पढ़ना in a day for CLAT. But if you are having your boards, you can study for that as well. But CLAT के लिए इससे ज़्यादा please मत पढ़ो. Try to give yourself a break too, and try to treat yourself, and stay in good health. Have a healthy sleeping schedule. Like if you're waking up early, please sleep early. If you are staying up all night, please sleep in the day. So have a good sleep schedule as well. Don't stress much about it, because at the end of the day, only thing that is going to help you is studying, not stressing over it. I just got one thing कि you should remember कि whatever you're doing is the right thing, and that is the only thing जो आपको आगे ले जाएगी, which I am also a firm believer of, कि अभी जो आप काम कर रहे हो ना, वो ही डिसाइड करेगा कि आगे होगा कि नहीं होगा. तो एवरी टाइम दैट यू फील कि यार पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा एक्सेट्रा, डोंट थिंक अबाउट इट. थिंक कि अभी अगर मैंने ये किया तो मैं 2 घंटे बाद तो रिग्रेट नहीं करूँगा कि मैं पिछले 2 घंटे में भी रिग्रेट कर रहा था. सो या Right. दैट वाज थिंग टू टॉक अबाउट दैट. आई फील कि याद रखना चाहिए आप लोगों को. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज कोचिंग और सेल्फ स्टडी. व्हाट डू यू थिंक कि सेल्फ स्टडी करके क्लैट निकाला जा सकता है या कोचिंग लेना ज़रूरी है, विच इज़ अ वेरी वेरी आस्क्ड क्वेश्चन. Yeah, so I think self study से CLAT निकाला जा सकता है. I have friends in my National Law University in Odisha as well who haven't taken coaching. उन्होंने coaching नहीं लिया है. They have cleared CLAT, so it is possible to clear CLAT without coaching. What you need is the correct guidance and the correct material. So what I would recommend, even though आप coaching नहीं ले रहे हो, you're not taking coaching, please try to take mock test series. Mock test series के बिना it becomes very difficult to clear CLAT, because unless and until you're practicing it regularly, you need to be practicing it regularly to get a hang of it, and उसके साथ तुम्हारा stress भी कम हो जाता है. As long as you keep on practicing, the stress reduces. So I think the coaching classes, daily coaching classes might not be necessary for clearing CLAT, even though that will help you, because if you are having any doubt, you can surely approach them and ask them questions. You can get your doubts cleared. That will surely help. But at the end of the day, the thing that matters is that your own self study, because unless and until आप self study नहीं कर रहे, if you're only there in the classes, आप classes में जा रहे हो coaching के, you are just sitting there, समझ रहे हो, समझ आ गया, but if you're not practicing it, if you're not applying it, that is not going to help. So coaching लेना compulsory नहीं है, but at least mock test series, please try to invest in that. And if you are finding problems in accessing mock test series, you can try, surely Telegram has a lot of resources, so you can get access from there as well. Did you go for coachings? I took a crash course. I did not take like a whole 1 year or 2 year ka pack. I went for a crash course which was of 3 months, 3.5 months. Right. One thing that I would like to add is coaching is totally upon you. ठीक है, just because एक बंदे ने कोचिंग लेके क्लियर किया और एक ने नहीं किया does not affect
योर ओन केपेबिलिटीज़, बिकॉज सबकी लर्निंग की कैपेसिटी अलग होती है, सबके वे ऑफ लर्निंग अलग होते हैं, तो वो चीज़ बहुत ध्यान में रखना। अगर आपको लग रहा है ना कि कोचिंग लेने से मुझे गाइडेंस मिल जाएगी अच्छे से और मैं बेटर परफॉर्म कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो प्लीज़ गो फॉर कोचिंग एज वेल। बट ऐसा नहीं है कि कोचिंग नहीं ली मतलब मेरा नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ अपने मन में मत रखना बिल्कुल भी। ओके, सो लाइक वी जस्ट टॉक्ड अबाउट सेल्फ स्टडी। सो सेल्फ स्टडी से एक चीज़ जो आती है कि जो एस्पिरेंट्स हैं क्लैट 2023 के, या जो 11th में है या जो 12th में भी हैं, एंड देर मैनेजिंग देयर स्कूल एंड CLAT. So what do you think? Did you manage CLAT and your schools, or were you a dropper? Right. I passed 12th this year only, so I did not. I tried to manage both CLAT and school, but like I focused more on CLAT because at the end of the day it was my priority that I had to. You have to give like priority to something at least. So some people can manage it very well. They can like at least like give 2 hours to school and give like 4 hours to CLAT. 4 hours to CLAT daily also helps you. Even if you have less time, you can give like 4 hours to CLAT, and what matters is the quality of studying that you are doing. So I think you can manage it because it's all about time management. Like if you take 1 hour out of your day to prepare for your school and to prepare for your 12th boards, that will help you as well. Because if you're going to school also, if you're attending your school classes as well, so I don't think if you're focusing on your school classes, you would need as much time for your 12th preparation or 12th self-study as you would do for CLAT. So for CLAT, you can give a bit more time for CLAT self-studying as compared to school. So by giving more time to CLAT and less time to school, you can probably manage it. But like it gets kind of hard, it gets kind of difficult, I understand. So another thing which I can recommend you is that you can try to maybe juggle these things. Maybe one day you are giving more time to CLAT and less time to 12th, and one day you are giving less time to your 12th studies and more time to CLAT. So you can try to juggle it, try to do it on your own. You should form your strategies for studying on your own, because all of us are different and we have our different ways of studying. So you can just try to do it, and just know that it is possible. It is possible. So if you're trying to do that, don't think that it is impossible and you won't be able to do that. You will be able to manage both of these things, so it will surely help you. Right. ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक जो 11th के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो बात की गई है कि अपन एक चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं, 11th में मे बी थोड़ा सा उसको बैलेंस अच्छे से किया जा सकता है बाय मे बी ऑल्टरनेट डेज भी स्टडी की जा सकती है. व्हाट डू यू थिंक सो? या 11th में यू कैन गिव, इवन 11th में तो आइड से कि वीकेंड्स पे ही पढ़ो CLAT का. मतलब इफ यू कैन, लाइक इफ यूर स्पेशली इफ यूर अ साइंस स्टूडेंट, व्हाट आई वुड सजेस्ट इज 11th में तुम अपना 12th का सिलेबस भी स्टार्ट कर दो पढ़ना. एंड लाइक CLAT को सिर्फ वीकेंड्स दो. वीकेंड्स पे CLAT के लिए तुम डेली रीडिंग कर सकते हो ऑब्वियसली, एंड वीकेंड में फॉर CLAT यू कैन लाइक डू अ बिट ऑफ लीगल रिसर्च की, सॉरी नॉट लीगल रिसर्च, डू ऑन वीकेंड्स यू कैन डू अ बिट ऑफ लीगल रीजनिंग का प्रैक्टिस, थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग का प्रैक्टिस, एंड लाइक इंग्लिश एंड मैथ्स कर सकते हो आप थोड़ा. तो 11th में मैं ये रिकमेंड करूंगी कि तुम ट्राई करो 12th का भी थोड़ा सिलेबस कवर कर लो इफ़ यू इन द वीक डेज, एंड देन वीकेंड्स पे यू कैन गिव टाइम टू CLAT. सो दैट विल हेल्प यू. फिर 12th में भी ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा तुम पे फॉर स्टडीज एंड मैनेजिंग CLAT विद 12th. सो दैट कैन हेल्प यू. एक पॉइंट आता है कि जो लॉन्ग टर्म प्रिपेयर कर रहे हैं, या तो ड्रॉपर्स की बात की जाए या फिर जो 2 साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक पॉइंट आता है ना कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं, अपने आप को ना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर देते हैं, तो दे डोंट इवन फील लाइक पुटिंग इन एफर्ट्स एंड तो व्हाट डू यू थिंक दीज पीपल कैन मैनेज? किस तरीके से इसे मैनेज किया जा सकता है ताकि वो वाली स्टेज ना आए जहाँ पे हम एक प्लेट्यू पे पहुँच जाए एंड देन देयर इज आई थिंक अगर तुम लाइक इफ यू आर फीलिंग वेरी डीमोटिवेटेड, या मतलब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, थिंकिंग लाइक मैंने तो सब कवर कर लिया, हो गया, मेरे को अब नहीं करना है, सो उस टाइम पे यू कैन लाइक मे बी इवन ट्राई टू जस्ट प्रैक्टिस लाइक टेस्ट सीरीज. मॉक टेस्ट भी नहीं, डोंट प्रैक्टिस फुल ऑन मॉक टेस्ट, ट्राई टू लाइक डू अ बिट ऑफ प्रैक्टिसिंग, जस्ट प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज लाइक इंडिविजुअल सेक्शंस के जो टेस्ट सीरीज होते हैं वो प्रैक्टिस करो. 20-30 मिनट के होंगे. इट विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, एंड जब तुम उनमें अपना स्कोर देखोगे ना, यू विल योरसेल्फ रियलाइज कि हाँ यहाँ पे मेरी अभी कमी है, एंड लाइक इफ आई कैन do a bit of work to like improve that will help me. So at the end of the day तुम्हारा गोल क्या है? Even if you are taking a drop, तुम्हारा गोल क्या है? You need to clear it next year. That's what your goal is. So ये try करो. Just take a small test
don't take the whole mock test because that takes a lot of time. And एक small test लो, and then you will see like हाँ मेरी यहाँ पे थोड़ी mistake है, and then you can try to improve that. And अगर तुम test लेके if you are getting like full on full, which is quite impossible in relation to CLAT, I think it is which is quite difficult in relation to CLAT, to be very honest. So उस time पे you can get motivated to study more, because like if you are able to get like full on full, if you are able to get some high marks, you can do much better by more practicing, and you can like ascertain a seat in a national or university for the next year. So Right. Okay. So just like you mentioned, you prepare in 4 months, right? And if you've seen my video, I had done Yeah. my preparation in 20 days. So one of the most asked question, when I बोलेंगे कि हर question ही most asked है इसका तो one of the most asked question is it possible to score good in less time? So guys, you have Yes. heard. I am an example. It is possible to score good. I have friends who have prepared for 2 months and they have gotten into national university. Trick ये है कि अपने skills पे focus करो as compared to knowledge. Because like CLAT does not test your knowledge, it tests your skills to understand, to read and to comprehend it. तो अपने skills पे focus करो, and skills को develop करने के लिए बस एक चीज काम आती है, practice. So what I would say is, even if you have 4 months, even if you have 2 months, you can practice for CLAT in that time. And even if you have 1 month, you can do. What you need to focus is on practicing and reading comprehension बढ़ाओ अपना. Just try to understand whatever you are reading, and try to just understand the basic concept of critical reasoning. Maths, if you are good at it, practice it. If you are not that good at it, उसके important topics जो होते हैं, थोड़ा graphs का understanding, वो सब practice कर लो बस. And like the लीगल रीजनिंग में भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा लीगल बेयर एक्ट्स पढ़ने की कोशिश करो. अगर समझ आ रहे हैं तो, नहीं आ रहा है तो लीव दैट बेयर एक्ट. ट्राई टू प्रैक्टिस फ्रॉम मॉक टेस्ट इटसेल्फ. मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो. सो इफ यू हैव लेस टाइम, व्हाट आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा मॉक टेस्ट करना शुरू करो. यू विल गेट एन आइडिया कि ये क्वेश्चंस जो है ना, ये बहुत ज़्यादा बार आते हैं, और ये क्वेश्चंस में मैं बहुत ज़्यादा गलती कर रही हूँ या कर रहा हूँ. एंड लाइक उसके हिसाब से यू कैन लाइक प्रिपेयर योर स्ट्रैटेजी, इतने दिनों में ये करना है. एंड कीप लाइक टू डू लिस्ट रखो अपने पास कि मुझे आज ये करना है. सो कम डेज में हो सकता है, क्योंकि कोई क्लैट है बस, ऐसा कुछ ज़्यादा भी बड़ा नहीं है. इट्स जस्ट क्लैट. तुमको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, तुमको ज़्यादा सीखना है. सो जस्ट बिल्ड अप ऑन योर स्किल्स rather than collecting sources. ला रहे हो यहाँ से ये नोट्स, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा. तो ट्राई टू build up on your skills. मॉक टेस्ट पे फोकस करो and just try to practice daily. That will surely help you. 4 महीने हो या 2 महीने हो, you will do it. याद रखने वाली बात ये है कि क्वेश्चन में क्या लिखना है वो नहीं आने वाला है, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है सिर्फ वो हमें आना चाहिए. Yes. तो जस्ट लाइक भूमिका मेंशन कि उसके 2 महीने में भी लोग हैं जिन्होंने NLU क्रैक किया है. एंड मैंने NLU नहीं किया क्रैक, बट 20 days में आई मैनेज टू गेट अ 4000 रैंक. सो आई फील लाइक अगर मैं 20 दिन में अगर मैं ला सकती हूँ, मैं 40,000 रैंक ला सकती हूँ, तो यू कैन लिटरली डू वंडर्स. एंड फॉर दैट मैं जो बोलूँगी ना कि अगर है कि नहीं पॉसिबल स्कोर करना, इट इज़ जस्ट लाइक भूमिका सेड, मॉक्स जितने ज़्यादा हो सको उतने दो. एंड एनालाइज देम, नॉट ओनली मॉक्स, एनालाइज देम. तो वो उससे ज़्यादा हेल्प कुछ कर ही नहीं सकता. तो मॉक्स तो बहुत बार मेंशन कर ही चुकी है भूमिका भी. तो गाइज मॉक्स बहुत आलस आता है मॉक्स देने में, नींद आ जाती है बीच में, लेकिन Just try to force yourself to give mocks. Yeah. Just try to set like at least for 2 hours read कर. अगर मॉक नहीं देना है ना, तो 2 घंटे बैठ के एटलीस्ट कुछ रीड कर लो, तो तुमको प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ा मॉक्स देने का. एक टाइप का स्टार्टर किट हो जाएगा मॉक्स देने का. देन गिव मॉक्स द नेक्स्ट डे. Okay, so when we're already talking about mocks, let's also talk about the strategy to give a mock. What approach should one have? You know, accuracy में लोगों को डाउट होता है कि कैसे accuracy को बढ़ाया जाए. एंड उसके बाद हम एनालाइजिंग के ऊपर अलग से बात करते हैं. लेकिन लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन व्हाट मॉक स्ट्रैटेजी, अप्रोच एंड एक्यूरेसी. ओके. सो मॉक्स का मैं ये बोलना चाहूँगी दैट एवरी मॉक इज डिफरेंट. तो अगर तुम एक स्ट्रैटेजी बना के जाते हो कि मैं पहले ये सेक्शन अटेम्प्ट करूंगा, फिर ये सेक्शन अटेम्प्ट करूंगा, दैट कैन समटाइम्स नॉट वर्क. क्योंकि मैं जो स्ट्रैटेजी ज़्यादा फॉलो करती थी, मैं खुद भूल गई हूँ एक्चुअली, बट लाइक जहाँ तक मुझे याद है, मैं जो स्ट्रैटेजी फॉलो करती थी उसमें मैं जो करती थी मैं जनरल नॉलेज वाला सेक्शन. बिकॉज लाइक इट वॉज दी फास्टेस्ट, क्योंकि उसमें बस पैसेज रीड करना इतना ज़रूरी नहीं है,
क्वेश्चंस रीड करके यू कैन लाइक टिक मार्क और जो भी करना है OMR फिलिंग, यू कैन डू दैट. एंड द नेक्स्ट सेक्शन विच आई यूज्ड टू डू वाज लीगल रीजनिंग, बिकॉज इट वाज द मोस्ट मार्क्स जिसमें आप ग्रैब कर सकते हो. सो लीगल रीजनिंग. एंड थर्ड में जो करती थी वो लॉजिकल रीजनिंग या इंग्लिश में से कोई सा भी कर लेती थी, विच जो मुझे उस टाइम सही लगता था, बिकॉज एवरी मॉक इज डिफरेंट, दैट वी शुड नो. फिर उसके बाद मैं उस जैसे इंग्लिश किया तो मैं उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग किया तो उसके बाद इंग्लिश, एंड देन एट लास्ट आई वुड यूज टू डू द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, क्योंकि मैं उसमें इतनी अच्छी थी नहीं. तो द थिंग इज इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन. अपना एक व्हाट यू शुड डू ना इज ट्राई टू थिंक ऑफ 2-3 पैटर्न्स कि मैं इस पैटर्न में करूंगा मॉक टेस्ट, पहले ये सेक्शन, फिर ये सेक्शन, फिर ये सेक्शन, एंड लाइक ट्राई टू यूज वन पैटर्न विद एटलीस्ट 2 to 3 मॉक्स. एंड ऐसे तुम 2-3 बार ट्राई कर लो. लाइक 6 मॉक्स के बाद ना तुम्हें पता चल जाएगा, यू विल रियलाइज कि हाँ दिस टेक्निक्स वर्क्स द बेस्ट फॉर मी. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ PCM स्टूडेंट, मैथ्स में तुम अच्छे हो गए, ट्राई टू डू QT पहले कर लो, क्योंकि वो फिर तुमको 15 मार्क्स मिल जाएंगे. एंड मैथ्स तो इज लाइक एक्यूरेसी का खेल है, उसमें एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आने नहीं वाली है अगर इफ यू आर गुड एट इट. सो लाइक मैथ्स उसमें तुम निपटा सकते हो. बट ऑल्सो कीप इन माइंड कि हर मॉक टेस्ट अलग होता है, कभी कभी मैथ्स भी बहुत ट्रिकी आ सकता है. तो कीप योर सेल्फ प्रिपेयर्ड, कीप योर सेल्फ ऑन योर टोज. एंड पहले तुम मॉक टेस्ट शुरू करने से पहले एक बार गो थ्रू कर लो. लाइक ऑफलाइन अगर तुम्हारे पास पेपर आएगा तो गो थ्रू कर लो फॉर श्योर. ऑनलाइन में इट इज़ डिफिकल्ट टू लाइक गो थ्रू द होल मॉक, तो उसमें मत करना, इतना बहुत टाइम ले लेगा, 2-3 मिनट लग जाएंगे. कर सकते हो इफ यू हैव टाइम, इफ यू हैव प्रैक्टिस दैट, ऑब्वियसली यू कैन डू दैट, बट लाइक आई वुड नॉट रिकमेंड. सो मॉक को पहले तुम गो थ्रू कर लो, एंड देन यू कैन लाइक उसके हिसाब से तुम मॉक के हिसाब से अपना स्ट्रैटेजी डिसाइड करना, एंड लाइक टाइम भी उसी हिसाब से डिवाइड करना. कभी कभी लीगल रीजनिंग का सेक्शन बहुत लेंदी आ सकता है या छोटा आ सकता है. एंड कीप इन माइंड कि तुम क्वेश्चन छोड़ सकते हो, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील. क्वेश्चन छोड़ना इज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील. अगर तुम्हें एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ रही है ना तो क्वेश्चन छोड़ दो, नहीं कुछ नहीं होता. It's better than getting minus 0.25. It's 0 is better than minus 0.25. तो क्वेश्चन छोड़ दो, कोई पर क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है. सो आई वुड रिकमेंड कि एक्यूरेसी के लिए इफ यू वांट टू इंक्रीज योर एक्यूरेसी, ट्राई टू द क्वेश्चंस जो तुम्हें 100% आते हैं पहले वो कर लो. बाकी क्वेश्चंस को यू कैन मार्क फॉर लेटर, कि बाद में अगर मेरे को टाइम मिलेगा आई विल जस्ट डू देम. तो दैट इज व्हाट यू कैन डू. एंड अटेम्प्ट्स इंक्रीज करने के लिए रीडिंग स्पीड बढ़ाओ. सो दैट इज लाइक द स्ट्रैटेजी विच आई यूज फॉर माई मॉक्स. एंड एट द एंड ऑफ द डे मॉक्स के स्कोर इतने मैटर नहीं करते, उस पर ज़्यादा चिंता मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे मॉक्स में कभी इतने मार्क्स आए नहीं थे जितने मेरे क्लैट में आ गए. सो डोंट वरी अबाउट लाइक मॉक्स के मार्क्स एंड ऑल. कोचिंग्स डिफिकल्टी बनाते हैं मॉक्स, जिससे यू नो तुमको गलतियाँ मिले एंड यू कैन ट्राई टू इम्प्रूव ऑन दैम. Also, we do not know whether it's going to be offline or online this year. बट अगर ऑफलाइन है, अभी तक भी अगर है कि हाँ ऑफलाइन ही होने वाला है, तो आई वुड सजेस्ट स्ट्रांगली कि होंगे तुम्हारे पास ऑनलाइन मॉक्स, गेट देम प्रिंटेड आउट और उनको फिजिकली सॉल्व करो. एक तो ना नींद नहीं आएगी मतलब सॉल्व करते हुए, और दूसरा यू विल गेट द हैंग ऑफ जल्दी जल्दी देखना कैसे है. और मेक श्योर यू, जैसे भूमिका जस्ट मेंशन की ना, जल्दी जल्दी पेपर देख लो. तो देखो कहाँ बहुत लंबे पैसेजेस हैं, टाइम लग सकता है, कहाँ शॉर्ट पैसेजेस हैं, कहाँ क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी हैं. वो एक बार में ना ऐसा लगेगा बात करते हुए कि देखना मुश्किल है, लेकिन जब पेपर देखोगे ना तो वो बहुत ईजीली दिख जाएगा. ऑल्सो जब हम मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं, एक कोचिंग के मॉक टेस्ट पे बिल्कुल रिलाय मत करना. गो फॉर वेरीड सोर्सेज. ज़रूरी नहीं है यार हर उसकी खरीदो. अगर तुम्हें नहीं लग रहा है कि यार नहीं खरीदना, मुझे नहीं खरीद सकता मैं, तो यू कैन गो फॉर टेलीग्राम बाबा. टेलीग्राम इज़ अ बिग हेल्प दीज डेज. एंड मैंने पर्सनली सारे मॉक्स वहीं से लिए थे, और मुझे लकीली सारे ना आंसर्स भी मिल गए थे मुझे, उसके आंसर स्क्रिप्ट्स. तो इट हेल्प्स, याद रखना. ओके, एक और चीज़ जो आती है कि प्रेपरेशन के लिए दीदी बुक्स बता दो. मैंने बोला यार ऐसे बुक्स, एक कोई बुक से सजेशन ना हो ही नहीं सकता. जैसे ही ना गाइड आती है, वो मैंने ली थी, वो मतलब मैं इसके पहले जब प्रिपेयर कर रही थी ना 2020 में, तब मैंने बुक ली थी बहुत पहले यूनिवर्सल्स की. वो यूनिवर्सल्स की बुक में मुझे लगा था इसमें सब कुछ होगा, इतनी मोटी किताब है, फ्लैट में तो सब हो जाएगा. लेकिन इट इज़, मतलब मैं किसी एक ब्रांड को टैग करके नहीं कह रही हूँ, बट एक बुक में उसका सिलेबस ख़त्म होना इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल. तो ये बात मन से निकाल दी जाए. क्या लगता है? या बुक्स से ज़्यादा मैं बोल रही हूँ, मैंने बार बार यही बोल रही हूँ, टेस्ट सीरीज आर योर बुक्स एंड न्यूज़पेपर आर योर बाइबल. बस बुक्स पे इतना फोकस मत करो. ट्राई टू स्टे अपडेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैट के लिए बस, एंड ट्राई टू रीड एंड अंडरस्टैंड थिंग्स. दैट इज लाइक द मेन थिंग.
बाकी मैथ्स यू कैन लाइक प्रैक्टिस फ्रॉम बुक्स, लाइक RS अग्रवाल की भी आती है, यू कैन प्रैक्टिस ग्राफ्स फ्रॉम दैट, बट अदर देन दैट बुक्स पे इतना रिलाई मत करो. जो भी तुमको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं क्लैट में, दे आर वेरी डिफरेंट. जो बुक्स हैं वो अपडेटेड नहीं है, बट जो क्लैट के क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो नॉर्मल पुरानी बुक्स आती थी क्लैट के लिए. पुराने पैटर्न में यू कुड हैव रिफर्ड टू बुक्स, एंड इवन आईलेट वगैरह के लिए बुक्स आती हैं अच्छी, बट फॉर क्लैट स्पेसिफिकली फोकस ऑन लाइक टेस्ट सीरीज में जो आता है ना, एंड टेलीग्राम पे जाके जो क्वेश्चंस वगैरह बुकलेट्स मिलती हैं क्वेश्चंस की, ट्राई टू गो थ्रू देम स्पेसिफिकली फॉर क्लैट. तो दैट विल हेल्प you more than any book can, because it is more about skills at the end of the day. True. And like books के लिए भी हाँ, I can recommend like books में बताऊँ तो क्रिटिकल रीजनिंग के लिए इफ़ यू वांट टू लाइक रेफर टू थिंग्स, क्रिटिकल रीजनिंग में पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं मोस्टली लाइक अजम्पशन, स्टेटमेंट के वीकनेस और स्ट्रेंथनिंग वाले, ये सब प्रैक्टिस से होंगे. एंड लाइक उन कॉन्सेप्ट्स को एक बार बस क्लियर कर लो तुम किसी ऑनलाइन PDF को रेफर करके. लाइक GMAT का भी थोड़ा फॉर्मेट सेम सा है, तो लाइक मैनहट्टन की क्रिटिकल रीजनिंग गाइड आती है, उसमें यू कैन जस्ट Ctrl+F करो, अजम्पशन डालो, अजम्पशन का चैप्टर एक बार रीड कर लो, बस रीड कर लो, कुछ रट्टा वगैरह मारने की जरूरत नहीं है. जस्ट रीड इट एंड ट्राई टू अप्लाई इट इन योर नेक्स्ट मॉक एंड सी फॉर योर सेल्फ इफ इट वर्क्स फॉर यू. ऐसे तुम लाइक डेफिनेशंस बस पढ़ के समझ लो एक बार, एंड लाइक एक बार समझ आ जाता है, देन यू कैन प्रैक्टिस के साथ तुम उसको इम्प्रूव कर सकते हो अपनी स्किल्स को उस में. तो इट्स बेटर दैट वे आई गेस. With this, I would also like to discuss the misconception of having a syllabus. या तो क्या लगता है, मतलब what I feel is syllabus is just, मतलब बहुत बहुत कन्फाइन करना हो गया. सिलेबस है नहीं एक्चुअली इतना कन्फाइन. क्लैट के लिए हाँ, क्लैट के लिए आइड से कि सिलेबस जो होता है इज बेसिकली लाइक मैथ्स में अगर तुम देख लो तो रेशियो, प्रोपोर्शन, वर्क टाइम, ये सब थोड़ा ज़्यादा फोकस में रहता है, इनको ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए, परसेंटेज वगैरह. बट लाइक एट द एंड ऑफ द डे ग्राफ्स फॉर्म में आने वाला है वो, तो ग्राफ्स प्रैक्टिस कर लो बस. कोई सिलेबस इतना स्पेसिफिक है ही नहीं क्लैट के लिए, बस बिकॉज लाइक वो भी बताते ना फिर सिलेबस, क्लैट वाली वेबसाइट खुद ही नहीं बताती है, कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज की वेबसाइट अच्छे से सिलेबस को डिफाइन नहीं करती है. तो एंड फॉर इंग्लिश ऑल्सो सिलेबस, इंग्लिश में तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, ये तो बात है. एंड लाइक ग्रामर, बेसिक ग्रामर लाइक जो 10th में पढ़ी होगी वही उतनी ही ग्रामर आती है, उससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा हाई फाई नहीं देते हैं. एंड लाइक फिगर्स ऑफ स्पीच पे फोकस करो फॉर इंग्लिश, एंड कभी कभी फिगर्स ऑफ स्पीच आता है इंग्लिश में, एंड यही सब आता है लाइक एलिट्रेशन, मेटाफर्स, ये सब क्या होते हैं. यू शुड जस्ट नो दीज बेसिक थिंग्स. सो ये सब तुम लाइक रेन एंड मार्टिन को रेफर कर सकते हो इसके लिए, या ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत हैं. सो इफ यू आर नॉट विलिंग टू लाइक स्पेंड दैट मच मनी ऑन अ न्यू बुक फॉर इंग्लिश ग्रामर, ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन PDFs अवेलेबल हैं फॉर बुक्स लाइक इंग्लिश इज ईजी एंड लाइक ये सब. सो वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो तुम. तो इंग्लिश का सिलेबस में बताऊँ तो मोस्टली इसमें ग्रामर आएगा बेसिक, बहुत बेसिक, एंड लाइक वोकैबुलरी आएगा, क्योंकि वोकैबुलरी कुछ ऐसे स्पेसिफिकली पूछेंगे नहीं ज़्यादा, बट लाइक अगर तुम रीड कर रहे हो तो तुमको समझ में आना चाहिए, इसलिए वोकैबुलरी. एंड बस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, दैट इज इट. कोई सिलेबस नहीं है ऐसा कि ये ग्रामर के चैप्टर्स करके ही जाने हैं. सो एड से कि बेसिक ग्रामर कर लो. एंड लाइक फॉर क्रिटिकल रीजनिंग ऑल्सो लाइक अजम्पशन, स्टेटमेंट्स के स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग, ये तुमको पता है सिलेबस अगर तुमको स्पेसिफिक चाहिए तो 3-4 मॉक्स लो, उनको एनालाइज करो, उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको देखो, एंड उस हिसाब से तुम खुद का सिलेबस बनाओ एंड देन वर्क ऑन दैट. सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट मोर. एंड लाइक क्लैट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं 2020 एंड 2021, उन पे भी फोकस करके एक बार तुम सिलेबस अपना खुद का बना के देखो. दैट विल हेल्प यू अ लॉट. ऑल्सो एक डाउट जो बहुत ज़्यादा आता है कि वेयर शुड वन बिगिन द प्रिपरेशन फ्रॉम. वो स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए. तो वेयर डिड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम? मेरा प्रिपरेशन आइड से अक्टूबर में मैं थोड़ा मतलब सीरियस हो गई थी. वैसे मैंने 11th से सोचा था कि आई वांट टू गिव क्लैट. बाकी मैं अक्टूबर ऑफ 12th क्लास के अक्टूबर में आई वॉज लाइक हाँ ओके लेट स्टार्ट, प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, टाइम आ रहा है, पता नहीं क्लियर होगा कि नहीं, क्योंकि उस टाइम आई वॉज ऑल्सो अनसर्टेन. तो व्हाट आई स्टार्टेड, मैंने एक मॉक दे दिया. आई वॉज लाइक ठीक है चलो मॉक ही दे देते हैं, क्या जा रहा है. एंड इफ़ यू गिव अ मॉक दैट विल हेल्प यू अ लॉट. एक बार आप मॉक दे दो, उसमें मार्क्स आपको पता चल जाएंगे. मार्क्स पे फोकस ही मत करो, यू विल गेट टू नो कि क्वेश्चंस कैसे हैं, राइट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको पता चल जाएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्लैट में, एंड यहाँ से तुम प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो. नाउ अब तुमको पता चल गया ऐसे ऐसे अच्छा क्वेश्चंस आते हैं क्लैट में, थोड़ा थोड़ा सिलेबस का आइडिया लग जाता है, देन यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम देयर. फिर तुम अपना क्या करो, ऑनलाइन जो इन्फॉर्मेशन है कंपेयर फॉर क्लैट, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, टेलीग्राम्स पे बहुत सारी वर्कशीट्स हैं, एंड लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा रिलेटेड टू क्लैट में. ये थोड़ा बहुत ब्रॉड सिलेबस मिल जाएगा. उस हिसाब से
यू कैन स्टार्ट. बट इफ यू आर इन 11th, व्हाट आई वुड रिकमेंड, 11th या 10th में हो, न्यूज़पेपर से शुरू करो. 12th में भी हो, यू कैन स्टार्ट विद न्यूज़पेपर फॉर श्योर. मैंने न्यूज़पेपर से शुरू नहीं किया था, आई स्टार्टेड विद लाइक मैंने एक मॉक देकर, इट्स जस्ट ट्रायल के लिए कि कुछ क्लैट का आता भी है कि नहीं, इज इट फॉर मी और नॉट. सो यू कैन ट्राई बाय गिविंग अ मॉक इफ यू वांट, बट मैं सबके लिए रिकमेंड नहीं करूंगी. इफ यू आर इजीली डीमोटिवेटेड बाय सीइंग योर मार्क्स, प्लीज डोंट डू दैट. स्टार्ट बाय न्यूज़पेपर्स एंड लाइक एडिटोरियल्स पढ़ो, एंड देन जस्ट ट्राई टू गिव अ मॉक लेटर ऑन, लाइक 1-2 हफ्ते बाद, एंड दैट विल रियली रियली हेल्प यू. सो आई वुड रिकमेंड कि फिर उसके बाद यू कैन लाइक स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर मैथ्स डेली. यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन डेली, एंड थोड़ा लीगल रीजनिंग वगैरह भी तुम लीगल न्यूज़ से अपडेटेड रह सकते हो. एंड लाइक यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट फ्रॉम टेस्ट सीरीज इटसेल्फ. Right. Yeah, so even Bhumika, I got a lot of questions on Instagram. सेम कि दीदी कहाँ से स्टार्ट करूँ, चालू कैसे करूँ. तो मैंने भी एग्जैक्टली सेम चीज़ बोली कि अब एक मॉक नहीं, सॉरी, लास्ट ईयर के जो 2 पेपर आए हैं न्यू पैटर्न पे, उनको हाँ, लेके last year देखो. के एंड papers, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर. पैटर्न से एक बार वो हो गया ना, पता चल गया कि पैटर्न एग्जैक्टली कैसे आता है, तो काफ़ी ईजी हो जाता है हमें पढ़ाई के लिए सिलेक्ट करने के लिए. और जब अपन चालू करते हैं प्रिपरेशन, तो आई फील कि हम दोनों ने और सभी फेस करते हैं कि ना बहुत ज़्यादा वेरिड सोर्सेज जाते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम में, और फिर उनको कम कर करके वी हैव टू स्टिक टू सम पार्ट. तो रिमेंबर, बहुत ज़्यादा वेरिड सोर्सेज से नहीं पढ़ना है. अपना जो मटेरियल है उसको फिक्स्ड रखो कि हाँ ये और ये जगहों से मुझे पढ़ना है, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी. 50 लोग होंगे बोलने के लिए, अरे तूने ये कवर नहीं किया, वो कवर नहीं किया, बट प्लीज़ उनकी बात मत सुनना. अगर तुम्हें पता है कि तुम ठीक चीज़ कर रहे हो, बी कंसिस्टेंट, दैट्स द की. ओके, या बी कॉन्फिडेंट. ओके. ऑल्सो अब आते हैं मेन पार्ट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एनालाइजिंग द मॉक स्क्रूनिटाइजिंगली. हाउ डिड यू एनालाइज? क्योंकि बहुत लोगों को एनालाइज करने में ही प्रॉब्लम होती है, एंड व्हाट्स द इम्पोर्टेंस. हाँ, आई वॉज वन ऑफ देम. मेरे को भी एनालाइज करने में बहुत प्रॉब्लम होता था. मेरे को पता नहीं था कैसे करते हैं, मतलब पता था एनालाइजिंग का. बेसिकली मैं बताऊं, अगर अच्छे से बैठ के एनालाइज करना है तो एटलीस्ट तुमको 2 घंटे तो लगेंगे ही, क्योंकि उतना टाइम का वो पेपर बनता ही 2 घंटे के लिए, तो तुमको लगेगा ही उतना टाइम एटलीस्ट. सो उसमें सबसे पहले तुमको अपने जो क्वेश्चन है जो करेक्ट है वो देख लो कि करेक्ट क्यों है. तुमने क्या तुक्का मार के करेक्ट कर दिया क्या वो गलती से? तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी लगता है हमें ये करेक्ट है तो ये तो करेक्ट होगा, इसमें क्यों चेक करना. बट कभी कभी वो हमने तुक्के मारे होते हैं, वो करेक्ट हो जाते हैं. इनसे उन पे भी फोकस करो रादर देन कि जो रॉन्ग है उन्हीं पे फोकस करना. सो फर्स्टली अपने जो करेक्ट क्वेश्चन है उनको एक बार देख लो. वो बहुत जल्दी तुम एक बार ग्लांस करके उनको खत्म कर सकते हो, तुमको उसमें ज़्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है. सेकेंड, जो तुम्हारे गलत क्वेश्चन हैं उन पे फोकस करो कि वो गलत क्यों है, व्हाट आर द मिस्टेक्स. एंड आई वुड हाईली रिकमेंड, जैसे मैंने पहले बताया, जो भी तुम्हें डाउट होता है या जो भी तुम्हारा क्वेश्चन गलत होता है मॉक टेस्ट में या किसी भी टेस्ट में, उसको तुम एक अलग फोल्डर में डाल के रख लो, अपने ड्राइव में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में या फ़ोन में कहीं भी, या अपनी एक डायरी बना के उसमें लिख लो वो डाउट. तो दैट विल हेल्प यू जब भी तुम फ्यूचर में रिवाइज करोगे. एंड लाइक जो तुम्हारे क्वेश्चन बिल्कुल हुए ही नहीं है तुमसे या छूट गए हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी क्वेश्चन छूट जाता है, पूरा एक पैसेज छूट जाता है, राइट. तो अगर तुम्हारा पूरा पैसेज ही छूट गया है तो उसको तुम एक बार बैठ के कर लो, विदाउट आंसर की देख के ना, एक बार बैठ के कर लो, जिससे तुम्हें पता हो कि भले ही छूट गया हो, आता है कि नहीं ये तो पता चलना चाहिए ना तुम्हें. सो लाइक डू दैट पैसेज. फिर जब तुम ये कर लोगे तो तुम्हारे जो भी क्वेश्चन छूटे होंगे ना, उनको तुम आप उन पे फोकस करो. एंड उनको तुम ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो कौन से टॉपिक से आए हैं, या ऐसा कैसे टाइप का क्वेश्चन था जो तुमसे नहीं हो पा रहा है. एंड इससे तुम्हें पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स तुम्हारे प्रिपेयर नहीं हैं, या कौन से टॉपिक में तुम लैक कर रहे हो, या कभी कभी टाइम की कमी की वजह से भी क्वेश्चन छूट जाते हैं. तो टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाएगा. एक तो तुम्हें जब तुम मॉक खत्म करोगे तभी पता चल जाएगा तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट कैसा है. बट लाइक you will get an idea कि these topics are the ones I need to work on, and फिर उन topics पे you can work on. So that is basically यही analysis के लिए follow करो कि पहले जो correct है उनको देखो, second which you have done wrong उनकी देखो कि क्या गलती की है, and third for what you haven't even done उनका देखो which topic they belong to, and उस topic को फिर you can go ahead and practice it before your next mock. So that will help you. राइट. सो ना मॉक, जैसे भूमिका ने बताया, एक पैटर्न होगा. तुम्हारे जो सही हो रहे हैं उनमें भी एक पैटर्न होगा. गलत किस टाइप के क्वेश्चंस हो रहे हैं, देयर इज गोना बी अ पैटर्न टू दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. और जो छूट रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस मैं कर ही नहीं पा रही हूँ या कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो वो पैटर्न को नोटिस करो कि कहाँ हो रही है गलती. तो अगर वो चीज़ पकड़ में आ गई तो आई गेस मॉक भी पकड़ में आ ही जाएगा. हाँ. अच्छा, एक चीज़ जो मुझे बहुत दुख देती है इज़
पीपल थिंकिंग कि मुझे ड्रॉप कर लेना चाहिए, कि आपको क्या लगता है सिर्फ 3 महीने रह गए हैं दीदी, और तो व्हाट डू यू थिंक आई थिंक बेसिस ऑफ ड्रॉपिंग क्या होना चाहिए? आई थिंक अभी उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए. यू शुड नॉट थिंक अबाउट ड्रॉपिंग आउट राइट नाउ. तुम अपने अभी क्लैट के लिए यू आर प्रिपेयरिंग. सो अभी जो क्लैट आ रहा है 2022 में, लाइक अगर तुम 11th में नहीं हो, 10th में नहीं हो, अगर तुम 12th में, एंड अभी क्लैट जो आ रहा है, यू शुड फोकस ऑन दैट एग्जाम. एंड उस एग्जाम के लिए हाउ मच यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ. डू नॉट थिंक कि क्लैट के लिए कभी प्रिपरेशन खत्म होगी, बिकॉज वो मैंने बताया वो स्किल बेस्ड एग्जाम है. तुमको बस अपनी स्किल बिल्डअप करनी है. क्लैट का कोई सिलेबस नहीं है कि तुमने खत्म कर दिया तो ओवर हो गया, कि अब प्रैक्टिस करने कि अब रिविजन का टाइम है सिर्फ, राइट. सो क्लैट का जो सिलेबस है वो कभी खत्म नहीं होगा. सो कीप दैट इन माइंड, एंड जितना तुम प्रैक्टिस कर सकते हो कीप दैट एंड प्रैक्टिस करो. एंड डू नॉट इवन थिंक अबाउट कि ड्रॉप लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा. डोंट थिंक अबाउट दैट राइट नाउ. वी कैन मेक अ वीडियो अबाउट दैट लेटर ऑन, कि जब क्लैट हो जाएगा उसके बाद वी कैन टॉक अबाउट इट. बाद में बात करना. अभी क्लैट दे दो, एंड मे बी यू वॉन्ट इवन हैव टू टेक अ ड्रॉप बिकॉज यू विल बी स्टडिंग एट अ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. यस, तो डोंट थिंक अबाउट दिस. काम करो अभी अपना, बस वही तुम्हारे हाथ में, टेंशन नहीं है हाथ में. अच्छा, अभी लेकिन एक चीज़ जो आती है, मे बी फॉर पीपल हु वॉचिंग दिस वीडियो आफ्टर दे डन विद द क्लैट थिंग, और हु थिंकिंग कि ड्रॉप लेना है नहीं लेना है एंड ऑल दैट, या जो लोग काफ़ी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हैं, हाउ टू प्लान अ बैकअप. बैकअप, एंड इज इट रियली इंपॉर्टेंट टू प्लान अ बैकअप? येस, आई गेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान अ बैकअप. मेरे को लगा था मेरा क्लैट हो जाएगा, जहाँ तक मतलब मेरी जितनी प्रिपरेशन, इतनी अच्छी भी प्रिपरेशन नहीं थी, बट लाइक अंदर से आ जाते थोड़ा कॉन्फिडेंस कि हाँ शायद हो सकता है, आई कैन डू इट. बट स्टिल आई हैड बैकअप्स. मैंने फॉर्म्स भरे थे बाकी कॉलेजेस के. मैंने आईलेट का भी फॉर्म भरा था. आईलेट तो इज काइंड ऑफ लाइक अ बिट मोर कॉम्पिटिटिव एज कम्पेयर टू क्लैट. एंड आई वुड से कि बैकअप्स आर अ ग्रेट थिंग. तुमको बैकअप रखना चाहिए अपने लिए. जैसे इफ यू आर थिंकिंग अबाउट कि तुम सिर्फ क्लैट मत दो, देर आर डिफरेंट एग्जामिनेशंस फॉर LLB, फॉर BA-LLB. उनके लिए भी थोड़ा प्रिपेयर करते जाओ. उनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, तो उनके फॉर्म भी भर देना. फॉर एग्जाम्पल मैंने IPU का फॉर्म भी भरा था. सो एंड लाइक बहुत लोग डिफरेंट कॉलेजेस भी होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं, उनके भी फॉर्म्स भर देते हैं. सो ट्राई टू नॉट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू क्लैट. भर दो फॉर्म, स्पेशली लाइक इफ यू आर ड्रॉपिंग, तो 5-6 उनका फॉर्म्स भर ही दो. यू आर गोइंग टू क्लियर क्लैट फॉर श्योर. लाइक वो पैसे जो तुमने फॉर्म भरने में डाले थे वो बर्बाद हो जाएंगे, डोंट वरी. बट लाइक एटलीस्ट यू विल हैव अ बैकअप ऑप्शन, राइट. तो या तो मैंने जो गलती की थी गाइज, उसे ना दोहराएं. अपने लिए एम्पल अमाउंट ऑफ कॉलेजेस सिक्योर करके रखें, और टेंशन ना लें फिर उस बारे में. दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग. तो करके रख दो बस. या डू नॉट वरी अबाउट. पहला एम याद रखना है कि पहला क्या एम है. और हाँ, नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी. नोट्स कैसे बनाएं दीदी, और वो नोट्स इस तरीके के हों कि हमें रिविजन में भी हेल्प की जाए. जैसे कुछ लोग होंगे जो अब रिविजन के स्टेज पे होंगे, कुछ होंगे जो अब स्टार्ट कर रहे होंगे. उन दोनों चीज़ों को भी एक बार डील कर लेते हैं. राइट. ओके, सो नोट्स की बात करूँ तो मैं सिर्फ करंट अफेयर्स के नोट्स बनाती थी मेनली. एंड बाकी जो कुछ बेसिक टॉपिक्स थे, लाइक क्रिटिकल रीजनिंग में अजम्पशन क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, प्रीमाइसेस क्या होता है, इन सब के नोट्स बनाती थी. सो फॉर एंड तो मैं नोट्स की बात करूँ तो इंग्लिश में तुम सिर्फ थोड़ा बहुत ग्रामर का जो तुम कहीं कहीं मिस्टेक कर देते हो, या तुमको कोई न्यू ग्रामेटिकल रूल पता चल रहा है जो कभी कभी ट्रिकी हो जाता है एग्जाम के टाइम पे, या तुम सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो उनके तुम नोट्स बनाओ. डाउट्स, एज आई हैव टोल्ड यू, कीप योर डाउट्स इन योर नोट्स. जो भी तुमने यहाँ गलत किया हो या तुम्हें डाउट हो तो उनको नोट्स में रख लो अपने पास. प्लीज नोट दैट डाउन, जिससे बाद में रिविजन में हेल्प मिलेगी उससे. फॉर करंट अफेयर्स व्हाट आई वुड रिकमेंड कि नोट्स लेते वक्त डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू वन सोर्स. लाइक तुम अगर करंट अफेयर्स का एक आर्टिकल पढ़ रहे हो, उस टॉपिक के 2-3 और एडिटोरियल पढ़ लो, उसमें से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेके फिर नोट्स बनाओ. एंड दैट विल हेल्प यू मोर देन एनीथिंग, बिकॉज फिर तुमको अलग वेरिड सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा थोड़ा मोड़ा, एंड उस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा कवर्ड रहेगा. तो क्वेश्चन अगर उन इन्फॉर्मेशन में से आ गया या उसके आसपास आ गया ना, यू विल हैव एन आइडिया अबाउट दैट. सो करंट अफेयर्स का थोड़ा 2-3 सोर्सेज से देख कर नोट्स बना लो. एंड फॉर मैथ्स आई डोंट नॉट थिंक नोट्स की जरूरत है. एक फॉर्मूला लिस्ट बना लो, सब ज़्यादा से ज़्यादा एक फॉर्मूला लिस्ट बना के प्रैक्टिस करते रहो थोड़ा थोड़ा, और फॉर्मूलाज जो मिलते रहेंगे उनका एक लिस्ट बना लो. एंड लीगल रीजनिंग में तो मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा ज़रूरत है नोट्स की. लीगल रीजनिंग में बस थोड़े लीगल कॉन्सेप्ट्स देख लिया करो वंस एट अ टाइम. एंड बस मॉक सॉल्व करो. जो डाउट में आए, जो क्वेश्चन डाउटफुल लगे, जिस क्वेश्चन में तुमने गलती की, जो क्वेश्चन तुमने छोड़ा, उन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में डाल लो या किसी ड्राइव फोल्डर में डाल लो. देख लिया करो उनको एक बार. एंड इफ़ यू डू दैट, तुम्हारा रिविजन हो जाएगा. You do not need to worry about that. Right.
एंड ऑल्सो लाइक फॉर मेकिंग करंट अफेयर्स नोट्स आई वुड नॉट रिकमेंड कि तुम नोटबुक में बनाओगे नोट्स, क्योंकि करंट अफेयर्स में क्या होता है ना कि डेवलपमेंट्स होते रहते हैं. सो इफ़ यू नीड टू ऐड समथिंग तो नोटबुक में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि तुम कितना ऐड करोगे उसमें, राइट. नोटबुक्स भरती जाएंगी और बाद में फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा. तुमको कोई टॉपिक ढूंढना होगा तो तुम उसमें Ctrl+F भी नहीं कर सकते नोटबुक में. सो दैट इज़ वेरी वेरी टफ. सो मैं क्या रिकमेंड करूँगी कि नोट्स मैं कैसे लेती थी. आई यूज टू मेक माई करंट अफेयर्स नोट्स इन स्प्रेडशीट. मैं गूगल शीट्स खोलती थी, उसमें टॉपिक डालती थी साइड में, एंड लाइक उसके जो भी नोट्स होते थे स्प्रेडशीट में बना के लेती थी. इससे क्या होता है ना, जब तुम्हें रिविजन करना होता है और उसके अलग अलग टैब्स बना लेती थी. फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ का एक टैब, फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ का एक टैब, फिर जो भी इंडिया से रिलेटेड नेशनल न्यूज़ का एक टैब. सो ऐसे मेरा डिफरेंट टैब्स में डिवाइडेड था एंड वो उसका शीट था. तो उसमें मैं टॉपिक लिखती थी, उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे को उस टाइम मिलती थी लिख देती थी. बाद में कोई डेवलपमेंट्स होता है या उसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ लिखना है, वो भी उसमें आ जाता था. सो फिर मेरे को पेजेस की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि अब मुझे इसमें और पेजेस ऐड करना पड़ेगा या और पेजेस चिपका के लिखना पड़ेगा. सो करंट अफेयर्स के नोट्स के लिए आई वुड रिकमेंड डिजिटल सोर्सेज प्रेफर करो, वर्ड या स्प्रेडशीट यू कैन प्रेफर. सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट मोर दैन नोटबुक. क्योंकि फिर नोटबुक में ऑल्सो यू कैन डू लाइक इफ़ यू प्रेफर कि नोटबुक से तुम्हें अच्छे से याद होता है तो डायरी या नोटबुक में करो. बट अदर देन दैट लैपटॉप में यू कैन डू इट ईजीली. राइट. तो ऑल्सो रिमेंबर कि किसी और के नोट्स से आपका हेल्प बिल्कुल भी नहीं होने वाली है. नोट्स आर माई नोट्स और योर नोट्स. तो ऐसे होने चाहिए जो तुम्हें समझ आए. कितने ही शॉर्ट फॉर्म यूज़ करो, जो भी करना है करो अपने वे में, आप जहाँ कंफर्टेबल हो, जहाँ आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर है, वो याद रख के बनाना. किसी और के नोट से कोई हेल्प नहीं मिलेगी. ओके भूमिका, वन थिंग इज़ लाइक जो हमने भी फेस की है कि हाउ टू कीप गोइंग विथ एवरीबडीज सजेशंस, बिकॉज एवरी पर्सन ब्रिंग्स 11 क्रेजी थिंग्स अप जो कि एकदम न्यू है. सो हाउ टू कीप गोइंग विथ ऑल ऑफ दिस. और सजेशंस what I would say is कि उस सजेशन को, इफ़ यू थिंक दैट सजेशन माइट हेल्प यू, तो एक बार उसको ट्राई करने में इट इज़ नथिंग रॉन्ग. कि अगर तुमको लग रहा है कि किसी ने बताया कि मैं ये सेक्शन को इतना टाइम दो, ये सेक्शन को इतना टाइम दो, ऐसा एक बार मॉक में ट्राई करो. तो यू कैन गो ahead and try that in your mocks, especially if it is coming from a credible source. So you can try it, and agar if it works for you, then go for it, because like there is no right or wrong way of doing things for preparing for exams like these. तो अगर मतलब wrong way तो है बहुत but like if someone is giving you suggestions, you can surely, if you think it is good for you, you can try that once or twice, and like if it works for you, go with it. ऐसा नहीं है कि उनका कोई suggestion है तो if you need to follow it all the time, but if it works for you, go for it. राइट. सो सजेशंस लेना कंपलसरी नहीं है गाइस. एंड एक चीज़ याद रखना कि अगर सजेशन ले रहे हो तो वो पर्सन कितना क्रेडिबल है, उसकी बात मानी जा सकती है. अगर आपको लगता है हमारी बातें कुछ वैल्यू आपको दे रही हैं तो आई गेसिंग कि अब तक लाइक तो कर ही दिया होगा और सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, तो कर देना प्लीज़. With that, I want to give a big shout out to Bhumika and thank her for being here. क्योंकि इतना टाइम निकाल के आना, thank you के बिना तो thank you is also like small word, but thank you so much Bhumika for being here with us. I'm sure काफ़ी value मिली होगी सबको, and it was nice interacting with you. She's such a sweet girl behind the camera. I cannot tell you. मतलब मुझे टाइम नहीं लगा being comfortable with her. तो yes, you can approach her as well as me for further questions if you have. बट मैंने ट्राई किया है कि जितने भी कमेंट्स आए थे ना इंस्टाग्राम अगर तुमने नहीं किया है अभी तक मुझे ऐड, तो मुझे इधर ऐड कर लो. भूमिका की भी आईडी ये वाली है, तो यहाँ पे यू कैन गो ऐड हर एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू हर चैनल, चेक हर चैनल आउट. एंड अगर वैल्यू मिली हो इस वीडियो से तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड विल मीट द नेक्स्ट मंडे. काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आ रहा है, तो मेक श्योर यू डोंट मिस इट. It's a different thing. And Bhumika, would you like to tell something at the end of this? How did you feel? Yeah, I hope this video provided some value to you guys. And if you guys have any further questions, you can surely approach me either on my Instagram DMs or my YouTube comment section. So you can visit my channel at Being Bhumika, and I would love to see you all guys there. And I would also love your suggestions regarding what more kind of videos that we can bring for you guys. So I hope you enjoyed this, and yeah. And I hope soon you'll be seeing me on her channel. Yeah. Okay. So with that, we come to the end of the video. Make sure you subscribe. Meet you the next Monday. Till then, keep watching. Namaste.